چل چکا ہے، ایک فیشن ہے جسے مشہور ہونا ہوتا ہے، وہ نبی کو ٹچ کر دیتا ہے۔ محتاج ہے میرے نبی کا، بغیر نبی کے بغیر نبی کے جناب والا ذرا مشہور ہو کے تو دکھائے، ٹچ بھی کیا تو مصطفیٰ کو، کیا جانیں گے یہ جناب والا مصطفیٰ جان رحمت کو آدم نہ پہچان سکے، مصطفیٰ کو آدم نہ پہچان سکے۔ جب آدم سے کہا گیا تھا حضرت حوا کو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، حضرت حوا کو پیدا کر دیا، تم جانتے ہو جنت میں بائیں پسلی سے پیدا ہو گئی، بہت خوبصورت میری ماں، بہت سندر میری ماں، حسن و جمال کی مرقع میری ماں، وہ ابھرے ہوئے رخسار، وہ موٹی آنکھیں، وہ خدا کی قسم چوڑی پیشانی، فرشتے بھی اللہ سے کہتے تھے مولا اجازت دے دے حوا کو دیکھ لیں، اور پھر حضرت حوا کو دیکھ دیکھ کے فرشتے جاتے تھے تو اللہ سے کہتے تھے سبحان اللہ، تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، کیا چیز بنائی ہے تو نے، بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، عورت بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اسی لیے لوگوں زیادہ سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سیدھا مت کرنا، زیادہ سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی، زیادہ سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے جناب والا، اس لیے مگر یہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جناب والا آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، جناب نہ چھوڑا جائے نہ اتنا کہ سر پہ بیٹھا لیا جائے، ہاں ایک پھول ہے، سننے کی چیز ہے بیوی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، ساری کی ساری دنیا برتنے کی ہے، وہ خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا میں سب سے اچھی برتنے کی چیز نیکوکار اور نیک بیوی ہے، سبحان اللہ، بیوی سینے سے لگانے کی چیز ہے، بیوی سینے سے لگانے کی چیز ہے، مگر جوانوں اتنا بتا دوں اگر بیوی سینے سے لگانے کی چیز ہے تو خدا کی 1 کروڑ بار قسم اٹھا کے عمران حنفی مراد آبادی آپ سے کہے گا کہ بیوی اگر سینے سے لگانے کی چیز ہے تو ماں اللہ کی قسم خدائی تحفہ ہے جو سر پہ اٹھانے کی چیز ہے، بیوی بیوی ہے، ماں ہے، اس لیے پیغام نوٹ کر لو، بیویوں کو آپ کرنے والوں، بیویوں کو سروں پہ بٹھانے والوں، ماؤں کو دھکے لگانے والوں، ماؤں کے کلیجے کاٹنے والوں، ماؤں کو ستانے والوں، یاد رکھنا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونے گا وہ جس نے ماں اور باپ کو ستایا ہو، آقا فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، پوچھا گیا سرکاری جنت میں کون لوگ داخل نہیں ہوں گے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں العاقل والدیہ، اپنی ماں کو ستانے والا، اپنے باپ کو ستانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا پوچھا گیا سرکار دوسرا کون، ارشاد فرمایا نشیڑیا، یہ نشیڑیے، یہ نشے والے بھیڑیے، یہ شرابوں کی لت لگانے والے، یہ جواریے، بھیڑیے، نشیڑیے، ٹوٹنیے جنت میں نہیں جائیں گی، بدیوس، اور تیسرا وہ جس کی بیوی آوارہ گھومتی ہو جناب والا آوارہ گھومتی ہو، کہتی ہے نینی جا رہے ہیں اور بجائے نینی کے سینی پہنچ گئی، علی بھائی نینی بجائے نینی کے سینی میں دکھائی دی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب والا بات میری طویل ہے، تھوڑا سا صبر آزما، مرحلوں سے گزرنا ہوگا، میں اپنے پوائنٹ کی طرف آؤں گا، مگر یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ مصطفیٰ جان رحمت بابا آدم جب حضرت حوا علی نبینا، حضرت حوا کی پیدائش ہو گئی تو بابا آدم علی نبینا علیہ السلام کا ہاتھ بڑھا حضرت حوا کی طرف، ہاتھ بڑھا حضرت حوا کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم ہاتھ روکو، ابھی ہاتھ مت بڑھانا حوا کی طرف، عرض کیا مولا کیا کروں، ارشاد فرمائے مہر دے دو، پہلے اس کا مہر دے دو، تیری جنت بھری پڑی ہے سونے سے، چاندی سے، ہیرے سے، جواہرات سے، کیا دے دوں حوا کے مہر میں، اللہ نے فرمایا نہ سونا نہ چاندی نہ ہیرا نہ جواہرات، ابھی نبی آئے نہیں ہیں مگر چرچا کا وشے بن گئے ہیں، ابھی نبی آئے نہیں ہیں، آدم اور آدم دادوں کے لیے آئی جل گھوشت ہو رہے ہیں، آدم تک نہیں پہچان سکے، یہ کاکا گاگا یاد نہیں ہے، یہ سمجھے گا محمد کون ہے، یہ بی سی ڈی معلوم نہیں ہے، دیکھنے کا نہ بھالنے کا، سورت پہ 12 بجے، نہ بولنے کی تمیز نہ بات کرنے کا سلیقہ، یہ سمجھے گا بابا آدم سے کہا گیا
نہ سونا نہ چاندی نہ ہیرا نہ جواہرات، تو پھر کیا دے دوں مولا؟ اس کے مہر میں مہر دے دینا چاہیے، پہلی ملاقات ہے تو خوش دلی کے ساتھ مہر دے دیا کرو۔ یہ بھی ایک پیغام ہے، بڑھاپے میں بڑھاپا آ جاتا ہے مہر دیتے نہیں ہو، بڑھیا مر جاتی ہے، پھر فون کرتے ہو یہ حضرت بیٹھے، حضرت بڑھیا مر گئی ہے، مہر نہیں دیا تھا، آپ کیا کروا؟ بڑھیا تیری، تو نے مہر نہیں دیا، ہمیں کیوں پریشان کر دیا؟ ارے آفاق مشاہدی صاحب، آپ کے پاس بھی فون آتے ہوں گے، ایسی کالیں آپ کے پاس بھی آتی ہیں، مہر دو۔ یہ جھوٹی شان و شوکت کم دکھا لو، یہ 10 پتیلے کم پکا لو، پہلے مہر دو۔ یہ جھوٹی شان شوکت کے چکر میں سب کچھ جھوکے پڑا ہے، دم کر، اللہ نے فرمایا مہر دو۔ سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام نے عرض کیا مولا سونا دے دوں، چاندی دے دوں، ہیرا دے دوں، جواہرات دے دوں؟ فرمایا نہ ہیرا نہ سونا نہ چاندی، تو پھر کیا دے دوں؟ تو رب نے فرمایا ایسا کرو آدم، ایسا کرو آدم، خاکسارو، مجاہد ملت کی یادگارو، پیارے پیارے خاکسارو، یا تو ڈینگر پور میں اور یا الہ آباد میں بہت نظر آتے ہو۔ ڈینگر پور ہمارا ڈینگر پور، مجاہد ملت، سبحان اللہ، اللہ اس آستانے کو سلامت رکھا، مجاہد ملت کا فیضان ہم پہ جاری فرمائے۔ ایسا کرو آدم، حوا کا، ارے سنو یار، مستند روایت ہے، ارشاد فرمایا آدم حوا کا مہر یہ ہے کہ تم میرے آخری رسول پر 10 بار درود شریف پڑھ دو۔ نبی کا نام نکاح میں مان دیا گیا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ارے نبی کا نام جب تک نہیں آیا ماں باپ کے لیے حلال نہیں، اس کا مطلب نبی کا نام نیچر میں رکھ دیا گیا، کائے میں رکھ دیا گیا، کائے میں رکھ دیا گیا، فطرت میں، خون میں، کیونکہ جناب والا فطرت وہیں سے بنی ہے، نیچر وہیں سے بنا ہے۔ نبی کا نام نیچر میں درود پڑی گئی ہے تو نیچر بنا ہے، تو ہمارے نیچر میں حضور کا نام ہے۔ اب جو لوگ حضور کے خلاف بکواسیں کرتے ہیں وہ نیچر سے لڑائی لڑ رہے ہیں، اور نیچر سے کب تک لڑے گا آدمی؟ ایک نہ ایک دن بے بس ہو جائے گا، نیچر کے سامنے سرنڈر ہو جائے گا، جھک جائے گا، گر جائے گا، دھوست ہو جائیں گے سارے تلے، شیش محل چکنا چور ہو جائے گا نیچر کے سامنے، جیسے کہ آج کل دیوبندی گر گئے۔ ہر بار ربیع الاول کو ہم پہ فتویٰ لگاتا تھا جلوس نکالنا حرام ہے، جلوس نکالنا حرام ہے، جلوس نکالنا حرام ہے، جلوس نکالنے کا ثبوت دکھاؤ، شو می ایویڈنس، شو می پروف، ہمیں دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے، ثبوت کہاں ہے جلوس نکالنے کا؟ جلوس نکالنے کا ثبوت کیا ہے؟ ہر سال پریشان کرتے تھے، فتوے لگاتے تھے، مصطفیٰ کا جلوس نکالتے ہیں سنی، تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ مانگتا رہا، نیچر سے لڑتا رہا، مگر 2024 کا جب 12 ربیع الاول آیا تو میں نے دیکھا کانپور میں دیوبندی مولوی آگے جنتا پیچھے پیچھے۔ جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سب ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دیں، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، جلسہ دستار بندی، زندہ باد پکاری، حق ادا کر دیا، زندہ باد پہ پکاری ہے تو میرے مصطفیٰ کی کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے؟ کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ جب سے کب تک لڑے گا آدمی؟ نہیں لڑ سکا، گر گئے، سرنڈر ہو گئے، جھک گئے، جلوس خود ہی نکالنے لگے، کانپور سے لے کر سہارنپور تک، اور رزلٹ ملا گلاب کے پھول پڑے دیوبندی مولویوں کے گلوں میں، زور سے، اور دیوبندی مولوی
जवानियों के गले में गुलाब के फूल के मुस्तफा जान रहमत का नाम ले रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ, इजाजत दो। हजरत मोहतरम हजरत आदम न पहचान सके, अभी नबी आए नहीं है। मुस्तफा जान रहमत की हकीकत को जनाबे वाला वो न पहचान सके, हजरत नूह न पहचान सके, मूसा ईसा न पहचान सके, इल्म वाले न पहचान सके, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नहीं पहचाना मुस्तफा जान रहमत की हकीकत क्या है। हजरत उमर नहीं जान सके, मौला अली नहीं जान सके, प्यारे उस्मान गनी नहीं जान सके, करबला के हुसैन आदम का क्या जिक्र खैर कर रहे थे ये महबूब जफर साहब और ये मेरे बुजुर्ग वाला आफाक मुशाहिदी साहब बार बार जनाबे वाला करबला की याद दिलाते थे। जनाबे वाला को ना पहचान सके, मुस्तफा की हकीकत क्या है। बगदाद का गौसे आदम इल्म का पहाड़ है, मगर वो भी न पहचान सके। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल जैसी हस्तियां न पहचान सकी। मुस्तफा की हकीकत क्या है कि जाहिल पहचानेगा। मुस्तफा की हकीकत क्या है, ABCD मालूम नहीं है वो पहचानेगा। मुस्तफा की हकीकत क्या है, अकबर को ठिकाने लगाने वाला मुजद्दिद अल्फसानी ने पहचान सका। अंग्रेजों को भगाने वाला मौलाना फजल हक खैराबादी न पहचान सका। 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रचने वाला मेरा अहमद रजा मेरा आला हजरत न पहचान सका। मुस्तफा कौन है तो ये पहचानेगा, इल्म वाले न पहचान सके आज तक मेरे नबी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लम यारिफ हकीकती गैर रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत कोई नहीं जानता। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, चर्चा का विषय है। आए नहीं तो चर्चित, आ गए तो छा गए। और 1499 साल पहले आए थे, आज इतना चर्चा है, इतना चर्चा है, इतना चर्चा किसी का नहीं है। कोई 20 साल में डूब गया, कोई 10 साल में डूब गया, मगर मुस्तफा है। हर चढ़ते सूरज के साथ मुस्तफा का जिक्र वाला बढ़ता ही चला जा रहा है, रहेगा यूं ही। उनका चर्चा रहेगा, पाए खाक हो जाए जल जाने वाले, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। और ये करना चाहता हूँ मैं जनाबे वाला, अल्लाह की मशीयत ने पुकारा, अभी इल्म को आम नहीं करूंगा। और जोर से अभी इल्म को, बैठ जा रे, बैठ जा, बैठ। मुंह उठाए कहाँ चला, ऐसे ही बैठे रहो। क्या मजमा है, नूर भरा है पूरे मजमे की कैफियत। सुभान अल्लाह, अल्फाज नहीं मिलते कि नक्शा खींच दूं। मजमा तो देखो। और इन्होंने तो, कैमरा वालों ने तो कसम खा ली है कि मौलवी के चेहरे से कैमरा हटाना ही नहीं है। इन्होंने तो कसम खा ली है कि पता नहीं मौलवी कब क्या कह जाए। अरे जनता इतनी खड़ी है तो कम से कम इतना होता कि हल्का फुल्का घुमा लेते, कभी न कभी तो घुमा लेते, मगर तुम तो ना घुमा रहे हो और ना कुछ कर रहे हो। जनाब वाला तवज्जो की जरूरत है, इजाजत आगे बढ़ूं। नोट करने की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान बरकाती साहब, तवज्जो चाहूंगा इल्म वालों की। और बोलूंगा भी आधा घंटा, और अगर मिल गया मौका 1 घंटे का तो 1 घंटा। प्रॉब्लम क्या है, रात अपनी है, माइक अपना, सुभान अल्लाह। कुर्सी अपनी, जनता अपनी, भैया अपने। सुभान अल्लाह। तो हरज क्या है, कोई बुरा तो नहीं मानेगा 1 घंटा और बोल लूं तो है। खुश रखे तो मैं आबाद रखे। अल्लाह की मशीद ही थी कि अभी इल्म का उजाला हम नहीं करेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ये अभी नहीं इल्म का उजाला हम करेंगे। हमसे पूछते हो व्हाट्स द प्रॉफिट ऑफ होली प्रॉफिट, नबी का फ़ायदा क्या है। ये फ़ायदा है, देखो सबसे बड़ा, अल्लाह की मशीयत ने पुकार, अभी नहीं, जब तक मेरा महबूब नहीं आएगा धरती के पर्दे पर, तब तक इल्म का उजाला हम जनता में फैलाएंगे नहीं। और बस मशीयत का जो टारगेट था पूरा हुआ। 12 रबीउल अव्वल शरीफ, पीर का दिन, भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह आ गया वो, छा गया वो। रब ने पुकारा, जिब्राइल झंडे उठा। एक झंडा जमीन के 0 पॉइंट पे लगा, एक झंडा जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा, एक झंडा जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा। बेमिसाल पैदाइश, जोर से सुभान अल्लाह। ये झंडा लगा तो जमीन के 0 पॉइंट पे, जमीन के सेंटर पे, एंडिंग पॉइंट पे।
ताकि जमाने भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत। अब सुल्तान आ रहा है जिसका राज सिर्फ मक्का मदीना में नहीं चलेगा, ये सिर्फ और ताइफ में नहीं चलेगा, जिसका राज सिर्फ अरब में नहीं चलेगा बल्कि जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक। अब अगर किसी का राज चलेगा तो क़यामत चलेगा, सुबह क़यामत तक चलेगा, जज इस कोने से लेकर उस कोने तक। अब अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे महबूब का राज चलेगा, ताज सजेगा तो महबूब का, झंडा उठेगा तो महबूब का, डंका बजेगा तो महबूब का। बरेली वाले आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जान वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी बोले, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, शिफ्टिंग ट्रांसफरिंग फ्रॉम हियर टू देयर। आओ जाओ टारगेट मुस्तफा है, आगे 12 रबीउल अव्वल को आ गए मुस्तफा, इलाहाबादियों छा गए मुस्तफा। बचपन देखा दुनिया बोली, हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं इलाहाबाद वालों, जब वो जवान हुए दानूपुर और आसपास वाले, और गलियां महकी हैं और गलियारे चमके हैं आमिना के लाल से, तो जमाना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। आ गया है वो वक्त जिसका इंतजार था दुनिया को, हो गए वो 40 साल के। सुभान अल्लाह, खुश रहो, ये नोट करने की बात है। आ गए वो, हो गए वो 40 साल के। रब ने पुकारा, महबूब आ जाओ, गारे हीरा में आ जाओ, आ जाओ गारे हीरा में, महबूब गारे हीरा में आ जाओ, मैं अपना कुरान दे दूं, मेरा बयान लेके चले जाओ। आ गए महबूब गारे हीरा में। बस इस गारे हीरा की इज्जत को सलाम। सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया को चमका दिया इस गारे हीरा ने। जोर से कहिए, बड़ा एहसान है इस गारे हीरा का, बड़ा एहसान है। अल्लाह ने भेजा जिब्राइल अमीन को इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम, मुस्तफा के मान सम्मान में एक बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है पूरी दुनिया को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सारी दुनिया को, इंसानों को। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। गारे हीरा में महबूब आ गए। अल्लाह तबारक व तआला ने, कोई बुजुर्ग आ रहे हैं, शायर इस्लाम तशरीफ ला रहे हैं, और देखना अभी जलवे बिखेरेंगे। और माशाअल्लाह इन ये जो आप लोग अगर जैसा आपका हुक्म हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी। बैठ जाओ, मोहम्मद अली फैजी आ रहे हैं। दिलों की धड़कनें तेज हो गई क्या? दोनों पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, और ये जफर महबूब साहब है। माशाअल्लाह आज तो सिलेक्शन बड़ा प्यारा किया है कारी इसराइल साहब ने। नारे तकबीर, आ जाओ। बस लंबा मत करो, टाइम कम है। बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, बीच वाले लोग बैठ जाओ ऐसे ही। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मुझे तुम नजर नहीं आ रहे मगर मैं तो दिखाई दे रहा हूँ तुम्हें। ये देखो मोहम्मद अली फैदी की तशरीफ ले। अब ये बात नोट करने की है, ये बात लिख लो और अच्छी तरीके से लिख लो। अभी वो बात आई नहीं जो मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट कर लो। तालिब इल्म को बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, इधर उधर मत देखो, इधर बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ। माशाअल्लाह ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। खुश रहे, आने वालों का रहमतें बरसें, बैठने वालों पे बरकतें उतरे। जलसे में आने वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, जाने वाला मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि वो कॉन्स्पायरेसी का शिकार हो जाता है। आने वाला बहुत अच्छा लगता है। आगे बढ़ता हूँ। 40 साल के नबी आ गए गारे हीरा में। भेजा हजरत जिब्राइल को,
बेशक सुभान अल्लाह। यही जुमले हैं नोट करने के। भेजा हजरत जिब्राइल को, पहला दिन है और पहले ही दिन हजरत जिब्राइल अमीन बुलबुले सैयदुल मलाइका कुरान शरीफ की पहली सूरत लेके आए। आज कुरान उतरेगा, अब जिब्राइल आए हैं कुरान की पहली सूरत लेके। कुरान की पहली ही सूरत में शाही फरमान जारी हो गया, डिवाइन स्टेटमेंट आ गया, खुदाई फरमान आ गया। जनाबे वाला पूछना चाहते हो नबी का क्या फायदा? ये फायदा है कि पहले ही दिन शाही फरमान जारी हो गया। मेरा रब ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मफहूम ये है कि आज हमने मानव समाज में, आज हमने मानव संपूर्ण मानव समाज में, पूरी इंसानी सोसाइटी में आज हमने इल्म का उजाला आम कर दिया है। इससे पहले जनता में इल्म नहीं था, मगर आज नबी आ गए, कुरान आ गया, इल्म का उजाला कॉमन हो गया। इल्म का उजाला फैलते ही फिर तो इनकलाब आ गया जनाबे वाला। वो जो कहते थे 11-11 फीट के लोग थे, 12-12 फीट के लोग थे, 11-11 फीट के, 12-12 फीट के, तुम्हारे लैंडरों पे ऐसे ही हाथ रख देते थे, वो रख देते अगर होते तो वो, लेकिन वो ऐसा न कर सके। वो कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। इल्म नहीं था ना उनके पास, इसीलिए कहते थे वो हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। मगर जब इल्म फैल गया, जब इल्म कॉमन हो गया, तो आदमी तो 5.5 फीट का है, आदमी 6.25 फीट का है, 5.4 का है, 5.6 का है। देखो ये शैतान है जो बार बार लाइट का भी गला घोंटेगा और माइक का भी गला घोंटेगा, मगर तुम मेरी तरफ मुतवज्जे रहो। इसे अच्छा ही नहीं लगता नबी का चर्चा। और तय कर लो, लाइट का गला घोटेगा तो, माइक का गला घोटेगा तो, शैतान किसी भी बात में, हम ये मजलिस छोड़ के जाने वाले नहीं है। और रोजाना वास्ता पड़ता है तुझसे हमारा, आखिर में मलमलाता रह जाता, हाथ मलते हुए रह जाता, बिना क्या है तुझे आज तक, क्यों बार बार तू जलसों में परेशान करता, डिस्टर्ब करता है। और देख एक भी नहीं जाएगा उठ के, कितनी लाइटें बुझा ले। चैलेंज है हमारा रे, एक भी नहीं जाएगा, नबी के गुलाम है सब। और शर्म का 40वां हिस्सा बतौर खैरात हो, ज़कात तेरे पास हो, और जब कोई ना जाए तो किसी तालाब में डूब के मर जाइए। एक नहीं जाएगा, तुम इधर देखो, लाइट रहे ना रहे तुम रहो। हाँ हमारी जिम्मेदारी है। हवाओं को पकड़ना इल्म नहीं था ना, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और जब कुरान की पहली सूरत के बाद इल्म का उजाला फैला दिया गया तो 5.5 फीट के ने कमाल कर डाला, इस जनता ने कमाल कर डाला। है तो 5.5 फीट का, 5.4 का, मगर कमाल देखो, इसने वही जो कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, इसने हवा को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया, और पूरी दुनिया को योकोहामा और अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया। एक आदमी उठा, कोयला देख के रेल का इंजन बना गया। जेम्स वाट निकम्मा, कोयला देख के रेल का इंजन बना गया, मार्कोनी रेडियो लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। 50-50 मंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं जनाबे वाला। ये देखो ट्रेन जनाबे वाला चल रही है, ये देखो अभी जनाबे वाला में दिल्ली से उड़ा और दुर्गापुर पहुंच गया 1 घंटा 45 मिनट के अंदर। हजरात इलाहाबाद से उड़ जाओगे तुम और दिल्ली पहुंच जाओगे 1 घंटे के अंदर। कमाल है जनाबे वाला फ्लाइट का। फ्लाइट के पीछे इल्म खड़ा है, इल्म के पीछे गारे हीरा खड़ी है, और गारे हीरा के पीछे मेरा नबी है। किसी नबी की जनता ने वो कमाल नहीं किया जो मुस्तफा की जनता ने कर दिखाया। फिर भी पूछते हो नबी का क्या फायदा है, नबी का क्या फायदा है? अगर नबी का फायदा ना होता तो एक मेडिकल कॉलेज दिखाओ नबी से पहले, एक यूनिवर्सिटी दिखाओ नबी से पहले, एक साइंस की किताब दिखाओ नबी से पहले, जियोलॉजी दिखाओ नबी से पहले, बायोलॉजी दिखाओ नबी से पहले,
सेक्शन को दिखाओ नबी से पहले, इल्म की तदवीनें दिखाओ नबी से पहले, मुस्तफा से पहले क्या इंसान न थे? एक यूनिवर्सिटी नजर नहीं आती। मैंने ऑक्सफोर्ड की हिस्ट्री पढ़ी, ऑक्सफोर्ड 1500 साल के अंदर बनी है। मैंने कैम्ब्रिज पढ़ी तो जनाबे वाला 1500 साल के अंदर की है। खुदा की कसम जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी तक, जनाबे वाला जितनी यूनिवर्सिटियों का एक नेटवर्क है पूरी दुनिया में, एक भी यूनिवर्सिटी 2000 साल पुरानी नहीं है, क्योंकि 2000 साल पहले दुनिया के पर्दे पर कोई यूनिवर्सिटी थी ही नहीं, इसलिए कि 2000 साल पहले मेरा नबी आया ही नहीं था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत रसूल आदम, जलसाए दस्तारबंदी, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। अब तुम्हारी समझ में आया होगा कि नबी का फायदा क्या है, और तुम्हारी समझ में ये भी आया होगा कुरान की बहार क्या है। कुरान की पूरी दुनिया को दिशा देने वाला मुस्तफ़ा, सारे ज़माने को दशाएं तय करने वाला मुस्तफ़ा, इंसानियत को जिंदा करने वाला मुस्तफ़ा, मानवता का आलम उठाने वाला मुस्तफ़ा, खबरों से जिंदगी खबरों से उठा उठा के जिंदगी की खैरातें बांटने वाला मुस्तफ़ा, जनाबे वाला। उस मुस्तफ़ा से पहले किसी को नहीं मालूम था कि ज़मीन में पेट्रोल भी निकलता है, ज़मीन में केरोसिन भी निकलता है, ज़मीन में जनाब डीजल भी निकलता है। किसी को नहीं मालूम था कि मार्बल भी निकलता है। ज़मीन के खजानों का इल्म किसी के पास नहीं था, कुछ नहीं था, मगर वो मुस्तफ़ा सब कुछ जानता था। वो जमीन के खजानों को जानता था, वो मुस्तफ़ा आसमानों के दर्रों को जानता था। मुस्तफ़ा माकाना व मा यकून का इल्म रखता है, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। उसके मन सम्मान में पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैला दिया गया। अफसोस होता है अगर कोई नबी का इल्म ना पे। अबे तू नापेगा बे मुस्तफ़ा का इल्म, तेरी औकात का तेरी हैसियत क्या है? मुस्तफ़ा तो वो बहार है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इल्म की बहार आ गई। हज़रात मुहतरम, मुस्तफ़ा जान रहमत की वजह से इल्म का उजाला फैल गया तो सारे ज़माने को रास्ते मिल गए, डगर मिल गई, आगे बढ़ने लगे। यहाँ तक कि जनाबे वाला किसी को पता नहीं था कि पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल का पता लग गया। किसी को पता नहीं था कि केरोसिन डीजल निकलता है, पता लग गया। किसी को हवाई जहाज़ का पता नहीं था तो जनाबे वाला देखो तो हवाई, अरे नबी के आने से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि चांद पे चले जाएंगे क्या। मगर आज मेरे नबी की जनता ने कमाल कर दिया। खुद मेरा भारतवर्ष, मेरा लकी इंडिया, मेरा ग्रेट भारत आज चांद पे गया। माय इंडिया इज नाउ ऑन द मून। मेरा भारत अब चांद पे गया है। नासा के लोग चांद पे चले गए, लेकिन नबी के बाद सब चांद पे गए हैं। नबी से पहले कोई चांद पे नहीं गया। और चांद से उन्होंने 2 तस्वीरें भी वायरल कर रखी हैं, और उन तस्वीरों में जनाब तुमने भी पढ़ लिया होगा, तस्वीरों के पीछे लिखा हुआ है कि चांद के बीचों बीच में, चांद के बीचों बीच में हमें 1800 किलोमीटर का रोड दिखाई दिया। मैंने कहा साइंस वालों, ये तो सच्ची बात है कि बीच में कुछ ना कुछ दिखाई दिया, मगर रोड नहीं है, वो फटन है जो मुस्तफ़ा की उंगलियों का कमाल है। मुस्तफ़ा की उंगलियों का कमाल है, मुस्तफ़ा की हाकिमियत का कमाल है। आज भी पता बताता है मुस्तफ़ा कल भी हाकिम थे, मुस्तफ़ा आज भी हाकिम है। और अगर यकीन ना आए तो चलो मक्का। बेशक सुभान अल्लाह। अगर 2-3 मिनट की इजाजत दो तो मुझे याद आ रही है, सुना दूं? इरशाद है, सुना दूं? इरशाद। ये अबू जहल है, ये इसके गुंडे मवाली खड़े हैं। अबू जहल की छतरी के नीचे एक से बड़ा पापी, महापापी, गुंडे, इसलिए चीटर सब जमाते हैं। खुतबा कोई कम था, शहबा कोई कम था, वलीद इब्न मुगीरा तो सर्टिफाइड गुंडा था। अबू जहल के छतरी के नीचे सब जमा। रोको 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 रोको, अब्दुल्ला के बेटे को रोको। और कौन सा रास्ता था जो जनाबे वाला इन्होंने अपनाया नहीं? आखिर में जो एक रास्ता अपनाया वो ये था कि इलाके के सूरमाओं को बुलाओ, ये समझाएंगे मक्के वालों को, मत जाना कोई अब्दुल्ला के बेटे के पास। आज बहुत मुख्तसर में सुना रहा हूँ। उन्हीं सूरमाओं में से एक सूरमा का नाम था हबीब, यमन का रहने वाला था। 14 ज़ुल्हिज्जा की बात बता रहा हूँ जनाब वाला, बात मक्के की है। 2 मिनट में बता दूंगा और तुम्हें पता चल जाएगा मुस्तफ़ा की हाकिमियत के जलवे क्या हैं।
حضرت محترم حبیب نام تھا اس کا, بہت بڑا چودھری تھا, بہت بڑا سورما تھا, یمن کا رہنے والا تھا, مکے کے ہر گھر میں چلتی تھی اس کی. بالغ القول تھا, نافذ القول تھا, بالغ الطول تھا, ہاتھ بہت بڑا طاقتور آدمی تھا, اس کی چلتی تھی, بڑا سنجیدہ, بڑا مہذب اور کلچرڈ آدمی تھا. ابو جہل نے اسے بلا لیا کہ سمجھا دے سب کو ورنہ یہ سب اس کے ہی ہو جائیں گے. آ گئے حبیب. حبیب نے آ کے کہا ہاں بتاؤ کیوں بلایا ہے؟ تو ابو جہل بولا ارے کیا بلایا ہے, دیکھو تم نے نام سنا ہوگا, وہ عبداللہ کا بیٹا ہے, عبد المطلب کا پوتا. ارے جانتے ہو نا ابو طالب کا بھتیجا؟ بولے ہاں جانتا ہوں, نام سنا ہے اس کا. کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ایک بار اس کی بات سن لیتا وہ اسی کا ہو جاتا. عجیب قسم کا آدمی ہے یار وہ, ایک بار جو سن لیتا. ہم نے لوگوں کے کانوں میں روئیاں ٹھونس دیں مگر محمد کی آواز روئیوں کی سرحد و سیماؤں کو پھاڑ کے لوگوں کے دلوں میں اترتی چلی گئی. نہیں رک سکا, کانٹے بچھا دیے, چلتا رہا, اونٹوں کی اوجھڑیاں ڈال دی, چلتا رہا, جنگ سے لاب تھمنے کا نام نہیں لیتا. آخری سہارا تو ہے, سمجھا دے کوئی نہ جائے اس کے پاس. ایک بار جو اس کی بات سن لیتا وہ اسی کا ہو جاتا. حیرت ہوتی ہے, نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا, نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا, مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. مصطفیٰ جان رحمت کا سیلاب اور جن سیلاب بڑھتا ہی جا رہا ہے. ایک بار جو سن لیتا ہے تو حبیب نے کہا ایک بار میری بات کراؤ اس سے, پہلے میں اس سے بات کر لوں. چاہتا کیا ہے وہ, پہلے میں اس سے بات کر لوں, چاہتا کیا ہے. تو ابو جہل سر سے لے کے پاؤں تک دیکھتا ہی رہ گیا اور پھر تعجب سے بولا ابے بات کا ہی تو جھگڑا ہے, ایک بار بات کر لے گا تو پھر بچے گا ہی کیا؟ جھگڑا تو بات کا ہی ہے. تو کہ جب تک بات نہیں ہوگی میں تیری طرح جاہل نہیں ہوں. محمد علی فیضی ارے میں تیری طرح جاہل نہیں ہوں کہ تیری سن لی اس کی نہیں سنوں. دونوں طرف کی سنی جاتی ہے. سنجیدہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو دونوں طرف کی سنتے ہیں, ایک طرفہ بات سن کے فیصلے نہیں ہوتے. یہ جاہلوں کا کام ہے, بے ایمانوں کا کام ہے, ایک طرفہ فیصلہ نہیں ہوتا. ایک بار بات کرو ورنہ نہیں ہونے دیں گے ایک بار بھی بات. کہا تو میں جا رہے ہوں. ابھی اٹھ گیا جانے کے لیے, عتبہ نے کندھے پکڑ لیے, شیبہ دوسرے کندھے پکڑا ہو گیا, اور حبیب اور ولید بن مغیرہ نے اپنے ہاتھوں کی اپنی باہوں میں لے لیا. بولے جاؤ مت, کچھ کر کے ہی جاؤ, فیصلہ کر کے ہی جاؤ. بولے فیصلہ تب ہوگا جب عبداللہ کے بیٹے کو بلاؤ, ورنہ میں جا رہے ہوں. ابو جہل بولا یار کیا جانے کی ذکر رکھیے, میں بلائے لے رہے ہوں, چلا. حد گیا حضور کے پاس. مردوں کے مرد, سورماؤں کے سورما, نبی نہ کسی سے ڈرے نہ جھجکے, نہ کبھی سرنڈر ہوئے. جیسے ہی خط گیا فوراً کھڑے ہو گئے, آ گئے. بڑی بڑی گولیاں بولتے ہیں, ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. زبان دان تھے نا, یوں کر دیں گے, وہ کر دیں گے, یوں کر دیں گے, وہ کر دیں گے. بڑی بڑی گولیاں بول رہے تھے. لیکن جیسے ہی نبی کا چہرہ دیکھا ہے ایسا سناٹا چھایا, ایسا سناٹا چھایا, بولتی ہیں بند ہو گئی. اگر تم دیکھ لیتے اس منظر کو تو تم اگر آنکھوں سے دیکھ لیتے تو تم کہتے گونگے کھڑے ہیں, اور میں دیکھ لیتا قریب جا کے تو میں کہتا گونگے نہیں مردے کھڑے ہیں, لاشیں کھڑی ہیں. اور میرے اعلیٰ حضرت کی پاکیزہ روح نے جب یہ منظر دیکھا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ارے اور زور سے کہاں ہے شعر سننے والے لوگ؟ محبوب ظفر کے شعروں کو بہت اچھی طریقے سے سنتے ہیں, محمد علی فیضی کے شعروں کو بھی بہت اچھی طریقے سے سنو. مجھے معلوم ہے تم کیا کیا کرو گے, سب معلوم ہے. جناب والا ایک شعر مجھ سے بھی سن لو, مگر شعر ہے صاحب, آواز نہیں مگر شعر ہے, اور ایسے موقع کا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت میرے امام نے کیا نقشہ کھینچا ہے. واقعی ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. میرا اعلیٰ حضرت تو جس راستے پہ چلا گیا, جس جگہ پہ نکل گیا, خدا کی قسم حق ادا کر دیا. جس علم پہ لکھا پانی پانی کا ڈالا, خدا کی قسم کتابیں پڑھ کے دیکھو میرے امام اعلیٰ حضرت کی, پتا چلے گا اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کیا شخصیت کا نام ہے. میں نے ابھی کہیں پڑھا تھا,
کہ اس وقت موجودہ دنوں میں ایک اکیلے بریلی کے امام احمد رضا ہیں جن پہ پوری دنیا میں 100 PhD ہو چکی ہیں. 100 PhD ہیں. سبحان اللہ, بہت بڑی بات ہے. اعلیٰ حضرت سرکار پہ ہو گئی تو میرے نے جب وہ منظر دیکھا کہ ادھر سے عرب کا چاند آ رہا ہے, ادھر ان کی بولتیاں بند ہو گئیں اور جناب والے یوں گونگ کھڑے ہو گئے, تو میرے اعلیٰ حضرت بولے دیکھو شعر سنو. کہاں ہے شعر سننے والے, کدھر ہے یہ سب؟ جناب والا فرماتے ہیں بریلی والے, یا رسول اللہ اے میرے آقا تیرے آگے یوں ہیں دوے لچے, تیرے آگے یوں ہیں دوے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, تیرے آگے یوں ہیں دوے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے, عرب کا چاند ہے, جیسے ہی آیا سناٹے کی دبی چادر کو میرے نبی نے یہ کہہ کے خود پھاڑا. ابو جہل سے بولے میرے مصطفیٰ کیوں بلایا ہے ہمیں؟ تو ابو جہل بولا میں نے نہیں بلایا, اس نے بلایا. حبیب نکل گیا, ہم نے بلایا, ہم نے یمن کے ہیں ہم, حبیب نام ہے ہمارا. تمیز سے بات کرنا ہم سے, تم تہذیب سے بات کرنا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا تہذیب سکھانے ہی کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے. کہا بہت کچھ سنا ہے تمہارے بارے میں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے آج عبداللہ کے بیٹے. ارشاد فرمایا کیا سنا ہے, ارشاد فرمایا کیا سنا ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو, کہتے ہو اللہ کے نبی ہو. ارشاد فرمایا نبیوں کے امام ہیں ہم, رسولوں کے سردار ہیں ہم. کہا اگر تم نبیوں ہو, اگر تم نبی اور رسول ہو, ان فیکٹ اگر سچے نبی ہو تم, جادوگروں کے جادو زمینوں پہ چلتے ہیں آسمانوں پہ نہیں. تمہارے بارے میں بہت کہانیاں چل رہی ہیں دنیا میں, بہت وائرل ہو رہے ہو تم, بہت وائرل ہو رہے, بغیر کیمرے کے ہی وائرل ہو گئے مصطفیٰ. کیا عجیب بات ہے, بہت وائرل ہو رہے ہو تم, مگر آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے اگر سچے نبی ہو. تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو, جادوگروں کے جادو زمینوں پہ چلتے ہیں آسمانوں پہ نہیں, اگر سچے نبی ہو تو جا 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو. یہ سن کے میرے نبی مسکرا دیے, اور مسکرائے اس لیے ہوں گے کہ بہت چھوٹی سی بات کر گیا رے حبیب, بہت چھوٹی سی بات کر گیا رے حبیب. یہ بہت چھوٹی سی بات ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں. یہ چاند تو بچپن میں ہم سے وعدہ کر چکا ہے کہ جیسے کہو گے ویسا کریں گے. کیا سوچ رہے ہو محمد, کر دو نا 2 ٹکڑے. خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, سرچ کرو گوگل پہ بھی ملے گا, واقعہ شق القمر مل جائے گا. مصطفیٰ کی شہادت کی انگلی اٹھی ہے, داغ نلا سکا, سینہ پھٹ گیا, چاند 2 حصوں میں فوراً بٹ گیا. ایک حصہ پورب میں تھا, ایک حصہ پچھم میں تھا. پسینہ پسینہ ابو جہل پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی حبیب کے, اور حبیب دل میں سوچنے لگا ارے کیا کر بیٹھا رے حبیب, تو پوری دنیا میں بدنام ہو جائے گا, تیری امیج ڈاؤن ہو جائے گی, اور قیامت تک جب تک انت نہیں ہو جاتا اس کائنات کا, لوگ تجھے گالیاں دیا کریں گے کہ ایک اچھے خاصے چاند کو 2 حصوں میں بانٹنے کا ذمہ دار یمن کا حبیب ہے. دل میں سوچنے لگا میری امیج گئی, کیا ہوگا؟ پھر ہاتھ جوڑ کے بولا ریکویسٹ کرتے ہیں عبداللہ کے بیٹے ہم تم سے, جیسا تھا ویسا ہی کر دو. ارے جیسا تھا ویسے ہی کر دو, رحم آ گیا نبی کو. بڑی جلدی رحم بھی آ جاتا تھا مصطفیٰ جان, رحمت بہت جلدی, بڑے رحیم ہیں, بڑے کریم ہیں, بڑے شفیق ہیں, بڑی جلدی رحم بھی آ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رحم آ گیا, انگلی کا اشارہ ہوا, اور جیسے ہی انگلی کا اشارہ ہوا تو خدا کی قسم پورب والا حصہ پچھم کی طرف چلا, پچھم والا پورب کی طرف چلا, دونوں حصے جڑتے ہوئے. مگر الہ آبادیوں شیشہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو لاکھ جوڑو بیچ میں درار رہی جاتی ہے, بیچ میں پھٹن رہی جاتی ہے. سائنس والوں روڈ نہیں پھٹن ہے. جو میرے مصطفیٰ کی انگلیوں کا کمال ہے, اور اس بات کا ثبوت ہے کھلا ہوا کہ مصطفیٰ کل بھی حاکم زمانہ تھا, مصطفیٰ آج بھی حاکم زمانہ ہے. تاج شریعت غبا سے پیر معرفت ابرو اہل
सुन्नत फख्र अज़हर अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी मियां फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। मुस्तफा जान रहमत के हाथ में है निज़ाम, मैं तो मालिक ही कहूँगा। मैं जनाब वाला ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही नबिया इल्म का उजाला फैल गया, फिर तो चांद पे चले गए लोग, फिर तो लोगों ने हवाओं को टच कर डाला, लोगों ने जनाब ट्रेन बना डाली, प्लेन बना डाला, पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर डाला। ये कमाल है गारे हीरा का, और गारे हीरा कमाल है मेरे कुरान का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मेरे नबी ने क्या किया बताओ? अरे पूरी दुनिया को दिशाएं दिखाने वाला और दशाएं देने वाला मुस्तफा, बताओ क्या कर रहा है अब? बताओ। वो साइंटिस्ट है, वो मेडिकल का सूरमा है, वो जनाब वाला बड़ा मास्टर है, वो बड़ा डॉक्टर है, वो बड़ा प्रोफेसर है। वो कहते हैं वो इसको मुअल्लिम वो जनाब वाला मेडिकल की ऐसी ऐसी बातें करता है कि मेडिकल की दुनिया हैरान है, आज की दुनिया हैरान है। जरा दूर से कहते सुभान अल्लाह। मैं वो बताता तो टाइम लग जाता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत का मालिक मेरा नबी अब बताओ क्या कर रहा है? कुरान उतरा, इल्म फैला, तो इन्होंने क्या किया? पूरी दुनिया के इस रसूल आज़म ने कुरान की आयतें ली और सीधे जनाब वाला मक्के में सबसे पहले हज़रत अरकम के घर में, हज़रत अरकम के घर में सबसे बड़े रसूल ने, सबसे बड़े रसूल ने, सबसे बड़े रसूल ने, सबसे बड़े साइंटिस्ट ने, सबसे बड़े मानव जवाब जाति के क्रम फरमा ने क्या किया बताओ? हज़रत अरकम के घर में सबसे पहले मदरसा खोला। सुभान अल्लाह। मदरसा खोला, जन्नत से मदरसे का तसव्वुर, कायनात की दिशाएं देने वाला मुस्तफा आता है और कुरान के उतरने के फौरन बाद अरकम के घर में मदरसे की बुनियाद रखता है। और जनाबे वाला मेरा नबी एक दिन मक्का छोड़ के मदीना जाता है, तो जनाबे वाला जानते हो वहाँ मदीने में भी एक तरफ अल्लाह का घर बनाया और दूसरी तरफ एक चबूतरे पे मदरसा खोल दिया। उस मदरसे में अबू बकर सिद्दीक पढ़े, उस मदरसे में उमर पढ़े, उस मदरसे में उस्मान पढ़े, उस मदरसे में अली पढ़े। एक सिलेबस एक, मदरसा एक और सिलेबस एक, अंदाज एक, पढ़ाने वाला नबी है। कुरान पढ़ाया जा रहा है, जिसने जिस नजर से पढ़ा वो उसी इल्म का एक्सपर्ट हो गया। अबू बकर ने पढ़ा, सदाकत के माहिर हो गए। उमर ने पढ़ा, कामयाब और खतरनाक किस्म के पॉलिटिशियन, ऐसे पॉलिटिशियन और ऐसे राजनेता बन गए, ऐसे राजनेता कि वक्त के राजनेताओं को पसीने आने लगे। दो उस वक्त दुनिया की दो बड़ी ताकतें थी, सो कॉल्ड सुपर पावर, एक ईरान था, एक रूम था, दोनों को पसीने आ गए। हजरत उमर कुरान पढ़ के ऐसा राजनेता बना। तुम कहते हो कुरान में क्या है, कुरान में क्या है? अबे कुरान छोड़ के देख लिया, क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। एक बार कुरान पकड़ के ही देख लो। कुरान छोड़ के देख लिया मौलाना हारून साहब, सदर है, माशाअल्लाह, दिल का खलूस है, क्या माशाअल्लाह माहौल है। किसी मौके पे फिर बताऊंगा। अब मैं समझ रहा हूँ हजरत मौलाना हारून भी हल्के हल्के मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम ज़्यादा हो रहा है। मगर जनाब वाला तुम बताओ, अगर मैं 1 घंटा और ले लूँ तो तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं होगा? हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी 1 घंटा और सुन सकते हैं मुझे? अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। मैं 1 घंटा और बोलूँगा तो फिर इनका क्या होगा? मेहमान हैं, बड़ी दूर से आए हैं, और मेरे बाद इनके बाद एक और बड़े मेहमान हैं। खुश रहें आप। मगर मैं जो नतीजा दिखाना चाहता था वो ये कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को नवाजा, तो महबूब की जनता में इल्म को कॉमन किया, महबूब की वजह से इल्म फैला। महबूब ने मदरसा खोला, सुफ़ा के चबूतरे पे पढ़ाया। अबू बकर पढ़े एक्सपर्ट बन गए, उमर पढ़े राजनेता बन गए, और इसी कुरान को पढ़ के मेरे उस्मान गनी अर्थशास्त्री बन गए। ऐसे अर्थशास्त्री बने, ऐसे अर्थशास्त्री, ऐसे अर्थशास्त्री, क्या बताऊं यार, करोड़ों। अरे क्या बताएं, दुनिया में इतना बड़ा अर्थशास्त्री कोई नजर नहीं आता। तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ अर्थशास्त्री एक तरफ और मेरी दुनिया का अकेला उस्मान गनी एक तरफ। सुभान अल्लाह। इतना पैसा हो गया कुरान पढ़ के उनके पास, वो रिजल्ट, वो उसूल अपनाए उन्होंने बिजनेस के। इतना पैसा कि जहां तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती खत्म हो जाती है, वहां से मेरा उस्मान शुरू होता है।
तुम्हारी दुनिया में कितनी गिनतियां हैं? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम, गिनती खत्म, यहाँ से उस्मानी शुरू। इतना पैसा। आज दुनिया की रीत है, सेठ मर गया तो करंट अकाउंट खत्म, सेठ मर गया कंपनी खत्म, कंपनी दिवालिया घोषित, करंट अकाउंट खत्म, सेठ मर गया करंट अकाउंट खत्म, सेठ मर गया करंट अकाउंट खत्म। मगर दुनिया का पहला सेठ है कुरान पढ़ने वाला मेरा उस्मान। इंतकाल फरमाए लगभग 1300 साल, पर्दा फरमाए लगभग 1300 साल, मगर 1300 साल के बाद भी आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। करंट अकाउंट, सेविंग नहीं, करंट अकाउंट चल रहा है। कैसा सेठ है कुरान पढ़ने वाला? तुम कहते हो पीछे रह जाता, कुरान पढ़ने वाला तो सबसे आगे। तुम कहोगे यार मौलाना तुम बहुत पीछे की बात बता रहे हो, इस जमाने की बात बताओ कि किसी ने कुरान पढ़ा हो और सबके आगे आगे हो। तो लो इस जमाने में सुनो, मेरे पास एक शख्सियत का नाम है, बड़ा शख्स है वो जनाब वाला, अकेला कुरान पढ़ा, ना कभी कॉलेज में गया ना कभी यूनिवर्सिटी में गया, सिर्फ कुरान पढ़ा, रब का बयान पढ़ा और मुस्तफ़ा का बयान पढ़ा, कुरान पढ़ा, रब का मुस्तफ़ा का बयान पढ़ा, बस कुरान पढ़ा और हदीस पढ़ी, और जनाब वाला वो ऐसा छा गया, ऐसा छा गया, ऐसा छा गया, ऐसा छा गया कि बड़े बड़े इंजीनियर उसके कदमों में पढ़े, डॉक्टर कदमों पे पढ़े हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के चांसलर वाइस चांसलर कदमों पे निछावर कर जर्मनी में मसला हल करने जा रहे हैं, बजाय जर्मनी जाने के उसी के कदमों में लिपट गए। और जनाब वाले जब मिनटों सेकंडों में उस शख्स ने वो मसला हल कर दिया तो बड़े बड़े प्रोफेसरों को कदमों पे गिरते हुए ये कहते हुए देखा गया कि अरे जब तुम्हारी शान ऐसी है तो बगदाद वाले गौसे आजम की शान कैसी होगी। हज़रत मोहतरम वो कुरान पढ़ा हुआ, सिर्फ हदीस पढ़ा हुआ, उसने तो कमाल कर डाला। उसने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इल्म वालों को ही हैरान कर डाला। इतिहास रच गया वो। जानते हो कौन है वो इतिहास रचने वाला? पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर गया वो। अकेला कुरान पढ़ के पूरी दुनिया की इल्मी दुनिया में छा गया वो। जानते हो कौन है वो? जियोलॉजी में माहिर, बायोलॉजी में माहिर, फिजिक्स में माहिर, तबियात में माहिर, जोग्राफी में माहिर, टाइमिंग में माहिर, हिंदुस्ता में माहिर। जनाब वाला हाँ हाँ पढ़ के देख लो उसकी किताबें, नाम बताया देता हूँ, तुम जानते तो सब होगे, ऐसा नहीं है जानते नहीं हो, जानते तो सब होगे। नाम बताया देता हूँ, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है नाम सुनते ही तुम बड़े खुश हो जाओगे। वो जो एक दिन भी यूनिवर्सिटियों में न गया और 56 इल्मों में 1500 किताबें सिर्फ कुरान पढ़ के लिख गया, उस शख्सियत का प्यारा प्यारा नाम है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वाली शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कहो, अल्लाह की निशानी कहो, नबी का मौजूदा कहो ज़माने में। नारे रिसालत मसलके आला जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह खुश रखे बेटा, तुम्हारा मुस्तक़बिल अल्लाह रोशन फरमाए, और जितने तुम्हारे नारों का जवाब दिया अल्लाह सबको सब सब्जियां शादाबियां और बहारें अता फरमाए। आमीन कह लो आमीन। पता नहीं किसी आमीन से किसका बेड़ा पार लग जाए। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दुआओं की जरूरत है, अल्लाह हम सबका भला फरमा दे। ये इदारा है, ये कारी इसराइल कहाँ गए? जिंदगी वक्फ कर दी इसराइल कारी साहब ने 20 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह ये 20 साल पहले भी जनाबे वाला उन्हें जिगर दिया इदारे को, आज भी उसी जिद्दोजहद और उसी संघर्ष के साथ इदारे को आगे बढ़ा रहे हैं। हजरात मुहतरम, ज़रूरत है कि तुम भी उनके साथ साथ चलो, ज़रूरत है कि तुम भी उनके सीने से सीना और शाने से शाना मिलाओ। मरोगे तो तुम्हें एक कुरान पढ़ने वाले की ज़रूरत का एहसास हो जाएगा, एहसास हो जाएगा। एक बेटे को हाफिज बनाओ कम से कम, आखिरी वक्त याद करो। कुछ अच्छा नहीं लगता, ना प्लाट की बातें अच्छी लगती, ना खेतों की बातें अच्छी लगती, ना इंजीनियरिंग की, ना डिग्री की। मेरा बेटा MBBS, मेरा बेटा MD, मेरा बेटा फर्स्ट, मेरा बेटा सर्जन, मेरा बेटा फिजिशियन, जनाब वाला बहुत पूरी जिंदगी कहता है मेरा बम्बई में, मेरा बम्बई कलकत्ता में, मेरा बेटा यूँ, मेरा बेटा यूँ, सारी जिंदगी कहता रहा। मगर जिस दिन मरेगा उस दिन ज़रूरत पड़ेगी, न प्लाट की बातें अच्छी लगेंगी, ना जियोलॉजी की, न बायोलॉजी की। उस दिन तो जब रूह अटक रही होगी तो कहेगा कि मुझे चैन दो, मुझे सुकून दो। बेटा कहेगा मैंने प्लाट खरीदा है अब्बा, मैंने प्लाट खरीदा है, बहुत बड़ा प्लाट है नैनी में, फिर सैनी प्लाट खरीदे मैंने, अकबरपुर में प्लाट खरीदा मैंने, प्रयाग रेलवे जंक्शन के सामने। तो बाबा कहेगा तेरे प्लाटों की बात है बहुत सुनी, दिल बेचैन है, बड़ा दिल खराब है, किसी हाफिज कुरान को बुला,
किसी हाफिज कुरान को बोला, याद आई हाफिज की जरूरत है अब मौलवी की, अब पिलाटो की बात नहीं चलेगी। मगर पता चला जुम्मेरात का दिन है, इमाम साहब के पास भागे गए, बेटा इमाम साहब जुम्मेरात का दिन है, मगर इमाम साहब छुट्टी पे है, जुम्मेरात का दिन है, घर चले गए इमाम साहब। और जनाब वाला रूम उनका बंद है, अब क्या होगा, अब तो जनाब वाला अब क्या होगा, इमाम साहब मिले ही नहीं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपना होता, अगर अपना होता तो आज खुदा की कसम काम आ जाता। उस दिन के लिए एक हाफिज और मौलवी बनाओ, इन मदरसों से जोड़ो, और उस दिन के लिए जिस दिन तुम कब्र में होगे अकेले कोई नहीं होगा, न यार न मददगार, कोई भी नहीं है। जानते हो उस दिन जरूरत पड़ेगी तुम्हें, भूल जाओगे सब इधर उधर की। जब वो तुमसे पूछेंगे मर रब्बो का, तेरा रब कौन है, तो तुमने एक बेटा मौलवी बना लिया था, एक हाफिज बना लिया था, आज वो बेटा मौलवी सब जनता चली गई, तुम्हें छोड़ के चली गई। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, सब चले गए, एक अकेला हाफिज कुरान बेटा बैठ गया, आंखों में आंसू थे, सरहाने पे बैठ के पढ़ता रहा। मौलवी था, उसे पता था आदाब का, वो पढ़ता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माँ बेचैन थी कब्र में, माँ को आवाज़ आने लगी बेटे की, वो करे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तलकीन करने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दोनों फरिश्ते आए, फरिश्तों ने कहा मर रब्बो का, बेटे की आवाज़ आ गई ऊपर से, तो माँ को बड़ा चैन मिला। बोला माँ कहने लगी फरिश्तों क्या पूछते हो, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है, मेरा रब अल्लाह है ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटा ऊपर से जनाब वाला तलकीन कर रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अंदर कहती है मेरा रब अल्लाह है। तो जनाब वाला बेटा ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बता रहा है। दूसरा सवाल तेरा दीन क्या है, कहा मेरा दीन इस्लाम है। और जनाब वाला बेटे की तलकीन के नतीजे में आखिरकार तीसरा सवाल हुआ मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, ये जो शख्सियत है इस शख्सियत के बारे में तू क्या कहता था, क्या कह रहा है, ये नहीं क्या कहता था, आज तो कह गई दुनिया में क्या कह रहा था। तो जनाबे वाला बेटा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, माँ को करार आ गया, कहने लगे इनके बारे में पूछते हो, इनके लिए तो जिए थे, मौत इनके नाम, जिंदगी इनके नाम से जिए, इनके नाम से मरे, ये हमारे मुस्तफ़ा हैं, ये हमारे आका है, हमारे सरों के मालिक हैं, दिलों के मालिक हैं, हमारे जान के मालिक हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत है, शमे बद में हिदायत है। निदाई हातिफ गैबी से सच कहा मेरी बंदी ने, सुभान अल्लाह। जरूरत पड़ी एक मौलवी साहब की, उस दिन के लिए काबिल मौलवी बनाओ, इन मदरसों से जोड़ो, कारी इसराइल साहब हैं नहीं, उनका हाथ मजबूत करो, इंतजाम मजबूत करो, मदरसों को परवान चढ़ाओ। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें और हमें प्यारे नबी के वसीले से इज्जत की ज़िंदगी अता फरमाए और बहारें अता फरमाए। मेरी तकरीर अधूरी रह गई, मैं कह न सका पूरी बात, मगर बस जनाब वाला जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के दर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मदरसों से जुड़ो और जनाब वाला कुरान शरीफ को सीने से लगाओ, सर पे उठाओ, कुरान पढ़ो और कुरान पढ़वाओ। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीख ले और कुरान सिखा दे। ये हाफिज कुरान हो गए हैं जनाब वाला, इनके माँ बाप को मैं मुबारकबाद देता हूँ, जिनके सरों पे इंशाअल्लाह उस दिन ताज ज़र्रीन रखा जाएगा जिस दिन कोई किसी का नहीं होगा। यौम यफ़िरुल मरअु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि, कोई किसी का नहीं होगा मगर इनके सरों पे ताज ज़र्रीन रखा जाएगा। हज़रात मोहतरम, चंद दिन की जिंदगी, मर गई दुनिया, मर जाएगी दुनिया। कब्रिस्तानों में जाकर देख लो कैसे कैसे आसमानों को जमीन निकल गई। हजरात कोई बचा नहीं है, इसलिए कब्र और हशर की भी तैयारी रखो। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत कुछ बयान करना था मगर बात अधूरी रह गई, इसलिए कि मेहमान और भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह किसी मौके पर बात करेंगे। इन बातों को याद रखना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझ है जिसे रोशन खुदा करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।